Okay, so let's see this case. Impact of jet on series of flat plates mounted on a wheel or rotor or runner like this, okay, or drum. So consider this figure. Let's say this is the drum, okay, and it can rotate. This nozzle is at rest, nozzle is fixed, है ना. तो यहाँ पर जेट इस तरीके से बाहर आएगा और इस पर स्ट्राइक करेगा तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा. लेट से ये किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर एक कांस्टेंट स्पीड होगा प्लेट का, लेट से यू. जेट जा रहा है वी से. तो इस केस में क्या होगा कि भाई जो स्ट्राइक करेगा यहाँ पर जाकर जेट, वो रिलेटिव वेलोसिटी से ही स्ट्राइक कर पाएगा बिकॉज प्लेट इज मूविंग. बट जितना फ्लो रेट इधर से आ रहा है पूरा का पूरा स्ट्राइक करेगा प्लेट पर, बिकॉज इस बार जैसे ही एक प्लेट जाता है दूसरा प्लेट जेट के सामने आ जाता है. दिस ओमेगा विल बी वेरी वेरी हाई. सो फॉर ए वेरी हाई स्पीड ऑफ रोटेशन जेट को तो ऐसा लगेगा कि ऑलवेज देयर इज ए प्लेट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ जेट. जेट को ऐसा लगेगा मेरे सामने हमेशा एक प्लेट स्टेशनरी कंडीशन में है और जेट उस पर v माइनस यू वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है. तो इस बार इफेक्टिव मास फ्लो रेट जो होगा वो एम डॉट के ही बराबर होगा. मीन्स कंप्लीट मास विल हिट एट द प्लेट्स बट इट विल हिट विद द रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू एंड it will be continuously rotating, continuously striking, continuously force, so continuously power generation will be there. तो हम लोगों ने कंटिन्यूस पावर जनरेशन अचीव कर लिया, वही हमारा नीड ऑफ द आवर है, ठीक है. तो यहां पर लिखो पहले, राइट डाउन few points. For a very high speed of rotation, for a very high speed of rotation, of rotor or wheel, or you can say drum, a plate will be always, a plate will be always present in front of the jet, in front of the jet. So whole mass flow rate m dot, whole mass flow rate m dot will strike या विल बी assumed, क्योंकि थोड़ा बहुत लॉस तो होगा प्लेट से टकराने के बाद. मास फ्लो रेट कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर गिरेगा और सारा का सारा टकरा भी नहीं पाएगा. विल बी assumed स्ट्राइकिंग ऑन दी प्लेट. तो सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं एट वेरी हाई स्पीड ऑफ द रोटर द कंप्लीट मास फ्लो रेट विल बी assumed स्ट्राइकिंग ऑन द प्लेट as. So m dot will be equal to m effective and it will be equal to rho q. So it will be equal to rho a v actually. What is the a, what is the v? You can see here for steady state flow this m dot will remain constant. A is the cross sectional area of the jet, v is the velocity of the jet, v is the velocity of the jet from nozzle, absolute velocity. And just before the striking at this point, just before the striking at this point, the velocity of nozzle is v. This point will be considered first point. And actually it is striking if we write here
रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू से स्ट्राइक करेगा एंड इट विल गेट एग्जिट with v minus u here like this. Okay, v minus u, it will get exit like this, and the plate is moving, let's say, u velocity in same direction, and this distance from the center to the center of wheel to the center of plate will be considered as radius r, and the wheel is rotating, let's say, with some constant angular velocity omega. So this will be the complete picture, है ना? डायग्राम क्लियर हुआ? So this will be your complete picture like this. फॉन्ट छोटा हो गया थोड़ा, है ना? करेक्ट कर दो. इधर पर v माइनस यू ये r हो जाएगा और ये u हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर ओमेगा. क्लियर हुआ अभी? तो अभी इसमें लिखो कंप्लीट मास स्ट्राइकिंग, बट दिस mass flow rate will strike the plates with a relative velocity of vr equals to v minus u. So this is the relative velocity, v minus u. Okay, so now for x direction or along the x-axis, how much force will be acting on the plate? So m dot delta v relative in x direction. So fx will be equal to rho av complete, and relative velocity in x direction initially minus relative velocity in x direction finally, ऐसे लिखेंगे. तो रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनिशियली कितना है, प्लस का v माइनस यू, माइनस फाइनली जो फ्लो वेलोसिटी है वो y डायरेक्शन में हो जा रहा है, तो x डायरेक्शन का 0 हो जाएगा. तो कितना बन जाएगा इधर पर फोर्स आ जाएगा रो ए वी इंटू वी माइनस यू, ये बन जाएगा फोर्स. हेडिंग पॉइंट ना, रो ए वी इंटू वी माइनस यू, ये फोर्स बन जाएगा एक्स डायरेक्शन का. ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है. दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, इसको याद रखना है. अभी फॉर वाई डायरेक्शन, डायरेक्ट लिख देंगे एफ वाई विल बी 0 ड्यू टू सिमेट्री, बिकॉज सिमेट्रिकली हाफ ऑफ मास फ्लो रेट ऊपर नीचे जा रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा वाई डायरेक्शन में, 0 होगा ड्यू टू सिमेट्री, 0 है. अभी बात कर लेते हैं वर्क डन पर सेकेंड का. तो फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो वर्क डन पर सेकेंड भी हो सकता है एक्स डायरेक्शन में. तो वर्क डन पर सेकेंड का मतलब होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. पर सेकेंड का मतलब डी वाई टी कितना बन जाएगा, वेलोसिटी. तो हम प्लेट पर निकाल रहे हैं, तो प्लेट का वेलोसिटी लेना पड़ेगा. दिस इज द वर्क डन बाय द जेट ऑन द प्लेट. तो दिस इज द वर्क डन बाय जेट ऑन द प्लेट, तो हमें प्लेट का वेलोसिटी लेना पड़ेगा बाई जेट ऑन द प्लेट. तो प्लेट पर हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसी का वेलोसिटी लिया जाएगा. तो प्लेट का वेलोसिटी लिया जाएगा.
तो दिस इज वर्क डन पर सेकेंड। तो वर्क डन पर सेकेंड कितना आ गया, रो ए वी पहले से है, यू मल्टीप्लाई किया इनटू वी माइनस यू, दिस इज द वर्क डन पर सेकेंड। वर्क डन पर सेकेंड कैन बी ऑल्सो रिटन एज पावर, क्योंकि यूनिट क्या होगा इसका, जूल पर सेकेंड और वाट्स। यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड और वाट्स। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको डब्लू डॉट करके लिखते हैं, वर्क डन पर सेकेंड, जैसे मास फ्लो रेट वैसे वर्क डन पर सेकेंड। अभी क्योंकि वर्क डन हो रहा है तो कुछ एफिशिएंसी वाला बात भी होगा, तो एफिशिएंसी ऑफ जेट, एफिशिएंसी ऑफ जेट कितना होगा, तो एफिशिएंसी ऑफ जेट होगा जेट कितना वर्क कर रहा है, वर्क डन पर सेकेंड बाई जेट, जेट ने कितना काम किया और जेट को कितना काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड इज गिवन टू जेट, और यू कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ऑफ द जेट। तो वर्क कितना कर रहा है, वर्क कर रहा है रो ए वी यू वी माइनस यू, इतना वर्क कर रहा है जेट ऑन दी प्लेट, और वर्क को काइनेटिक एनर्जी, सॉरी जेट को काइनेटिक एनर्जी कितना मिल रहा है, हाफ एम डॉट, हाफ एम डॉट को डायरेक्टली आई कैन राइट रो ए वी इंटू वी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। सो रो ए वी विल बी कैंसल्ड आउट, टू ऊपर जाएगा यू के साथ और v माइनस यू बनेगा, अपॉन में आ जाएगा v स्क्वायर। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द जेट, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द जेट। ओके, अभी इधर कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज द कंटिन्यूअस वर्क, तो ये अपना अच्छा है, इससे कंटिन्यूअस पावर जनरेशन हो सकता है। तो ये कंटिन्यूअस वर्क है, एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर लिया। तो जरा देखते हैं ये सिस्टम जो है वो कितना मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सकता है। ठीक है ना, तो देखो यहां पर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या किया, V को फिक्स किया, लेट से V इज फिक्स्ड और गिवन, यू कैन वेरी, क्या टरबाइन का रोटर को कितना स्पीड से चलाना है, रोटर का स्पीड आप कंट्रोल करेंगे, रोटर का स्पीड आप कंट्रोल करेंगे। तो ये कंट्रोलिंग है, इसको गिवन है, इसको फिक्स किया, इसको कंट्रोल किया। तो विद रेस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ द रोटर, स्पीड ऑफ द प्लेट, स्पीड ऑफ द वेन्स, उसको कंट्रोल करेंगे। तो उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी को डिफरेंशिएट कर देंगे। सो फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम डी एफिशिएंसी बाई डी यू इक्वल टू जीरो, इसका इक्वल टू जीरो, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो टू यू को अंदर भेज दिया, ये सारा कुछ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये सारा कुछ कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट है, इसको आप जीरो पहले भी भेज सकते थे, अदरवाइज इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो u का 1 हो गया, v को ऐसे ही रखा, यू स्क्वायर का 2u हो गया इक्वल टू जीरो, ये कांस्टेंट है तो ये इधर जीरो में चला जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू जीरो मीन्स u इक्वल टू v/2। मतलब हमको रनर ब्लेड का स्पीड कितना रखना है, v/2 के बराबर रखना है। v इज द वेलोसिटी ऑफ जेट, u इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लेड। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ ब्लेड को हाफ ऑफ द जेट वेलोसिटी रखेंगे, देन वी विल गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द जेट, और यू कैन से हाइड्रोलिक एफिशिएंसी भी बोलते हैं इसको। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसका वैल्यू पुट कर दो, u इक्वल टू v/2, इसमें पुट कर दो तो हमको वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगा। सो फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी v, u की जगह v/2 पुट किया, v/2 पुट किया, v/2 यहां पर आया तो टोटल आ गया 0.5। मतलब इस तरीके के व्हील से हम मैक्सिमम 50% एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं, 50% एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। आगे देखेंगे और भी इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो इसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। ये हमारा सिंपल केस है कि एकदम फ्लैट प्लेट्स जो है वो रनर या व्हील और ड्रम पर आपने लगा दिया, एकदम फ्लैट प्लेट, सिंपल डिज़ाइन है। फॉर दिस सिंपल डिज़ाइन कितना मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सकते हो, 50%। और वो कब होगा, जब आप रनर ब्लेड का स्पीड
जेट के स्पीड का हाफ करके रखेंगे, हाफ करके रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको लगेगा कि जितना तेज रोटर घूमेगा उतना तेज जनरेटर घूमेगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी हो जाएगा। नो, लाइफ में मैक्सिमम काम करने से और मिनिमम काम करने से प्रॉफिट नहीं मिलता है। ऑप्टिमम काम करोगे तो ज़्यादा देर तक कर पाओगे। जैसे कोई सोचे मेरे को सिलेक्शन चाहिए तो मैं मैक्सिमम टाइम पढ़ूंगा, रोज 24 घंटे पढ़ रहा है, ना खा रहा है ना पी रहा है ना सो रहा है, 2 दिन ऐसा करेगा, फिर 2 हफ्ते तक क्या होगा, मिनिमम में चला जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो हमें ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना होता है, मैक्सिमा मिनिमा नहीं करना होता है, हमको ऑप्टिमा करना होता है। ऑप्टिमम इज एक्चुअली मैक्सिमम। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम विल गिव यू, ऑप्टिमम इनपुट विल लीड टू मैक्सिमम रिजल्ट। मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम इनपुट कैन रिजल्ट इनटू फेलियर। ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा दिया, फेल हो गया। और मिनिमम लगाया, मिनिमम से पता चला कि सिस्टम घूमा ही नहीं। तो ना मिनिमम एफर्ट करो ना मैक्सिमम एफर्ट करने की कोशिश करो, ऑप्टिमम एफर्ट करने की कोशिश करो तो लंबा जाओगे। बोलते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है, धीरे 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 धीरे, वो दूर तक जाएगा। बात चलिए तो दूर तक जाएगी। हाँ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं।